اللہ کی تعلیم ہوتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کے راہ میں چلنے والے ہوتے ہیں، راہ سلوک کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا چیزیں حجاب بنتی ہیں، کون سی چیزیں حجاب بنتی ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر نظریہ جماعت کی انشاءاللہ اچھا کروا میں ہم سے پڑھایا جائے گا۔ کتاب انصاف باب چھٹا صفحہ نمبر 57 طالب مولا کے حجابوں کے بیان میں نقل نمبر 1 خدا تعالیٰ کی راہ میں طالب حق کے لیے 4 چیزیں حجاب ہیں، جن میں سے 2 انسان کے امکان میں ہیں، یعنی دنیا کو چھوڑنا اور خلائق سے علیحدگی اختیار کرنا، اور 2 امکان میں نہیں، یعنی نفس اور شیطان۔ پس ترک دنیا اور خلق سے عزلت اختیار کرے، نفس اور شیطان کے متعلق خدا تعالیٰ سے پناہ مانگی، اس لیے کہ ان کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی طالب علم کو چاہیے کہ ترک دنیا کرے، تمام سے وطن کو چھوڑ کر، اور دوسرا حجاب عزلت خلق ہے، اور عزلت خلق یہ ہے کہ خلق کے ساتھ جو کچھ آشنائی ہے، جب ہمارا انجام سب کو چھوڑنا ہے، جب تو قل هو اللہ کے جیسا دوست رکھتا ہے تو خدا کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان کے اطراف لکیر کھینچ دے۔ نقل نمبر 2 اور نیز واضح ہو کہ بندگی میاں شیخ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گجرات سے ہجرت کر کے جالور تشریف لے گئے تھے۔ وہاں میاں خواجہ محمود نے عرض کیا، اگر خونخوار کی رضا ہو تو یہ بندہ جماعت خانہ یعنی مسجد کی تیاری کے لیے بار برادری کا انتظام کرتا ہے تاکہ گھاس اور لکڑی لائیں۔ بندگی میاں شیخ منیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضرورت نہیں۔ بعدہ خواجہ محمود نے کہا کہ موسم میں بارہ آ گیا ہے، برادران کو پریشانی ہوگی۔ میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی پریشانی نہ ہوگی، ہر ایک برادر اپنے اپنے گھر میں نماز ادا کر لے گا۔ خواجہ محمود نے بہت کچھ عرض کیا، لیکن میاں نے یہی جواب دیا کہ ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میاں گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ بندہ ولی ابن یوسف اور میاں یوسف معذور میاں کے پیچھے پیچھے گئے۔ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اور ہم دونوں سے میاں نے فرمایا کہ اہل نفس سے فرمائش نہیں کرنی چاہیے کہ فوراً منقطع اور شکستہ یعنی بد انتخاب ہو جاتا ہے۔ اور تمام بھائیوں کو معلوم ہے کہ خواجہ محمود پکا مصدق تھا۔ چند سال کے بعد میاں مذکور خدا کی راہ میں ہجرت کر کے ملک ارادہ کے دائرے میں کمال کو پہنچ کر انتقال کی۔ نمبر 3 نمبر میں بندگی میاں شیخ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادروں کے لیے ایک گاڑی اور 2 جانور رکھے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے طلب کرنے کی نوبت آئے، اور فرمایا کہ یہ بندہ یہ گاڑی اور جانور اسی لیے رکھا ہے کہ برادروں کے کام آئے اور لوگوں سے سوال نہ کریں اور نہ طلب کریں۔ نقل نمبر 4 اور میاں سید محمود رضی اللہ عنہ اور میاں سید منیر رضی اللہ عنہ اور میاں نعمت رضی اللہ عنہ کی روش یہ تھی کہ اگر کوئی طالب مولا مصدقوں کے گھر سے دہی لاتا تو دائرے میں اس برتن کو توڑوا دیتے تھے۔ نمبر 5 میاں سلمان رضی اللہ عنہ، میاں دولت خان اور ہر 2 مہاجران مہدی علیہ السلام تھے، یہ بھی دہی کا برتن توڑ ڈالتے تھے۔ نمبر 6 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں سے جہاں تک ہو سکے بے نیاز ہو جاؤ، اگر مسواک کی شوئی کیوں نہ ہو، یعنی لوگوں سے بے پرواہ اور بے غرض ہو جاؤ، اگرچہ کہ مسواک کی شوئی کی ضرورت کیوں نہ ہو، اس قدر بھی خلق کے محتاج مت ہو، اور ان سے مدد طلب کرنے سے پرہیز کرو، اور ہر کام میں خالق سے پناہ لو تاکہ رب تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو۔ نمبر 7 فرمایا نبی
नबी अलैहिस्सलाम ने तुम बेनियाज हो जाओ मिसवाक से भी जहाँ तक तुमसे हो सके। नंबर 8 और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने जब आदमी मांगने लगता है तो खुदा उसे मोहताज बना देता है। नंबर 9 फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने हिर्स एक खंजर है जिससे दिल ज़िबा किया जाता है। नंबर 10 और नेज़ वाज़े हो कि बंदगी में से उम्मीद रज़ियल्लाहु अन्हु ईद की नमाज के लिए सुल्तानपुर को पैदल रवाना हुए और उसके बाद मलिक राजा को खबर हुई, सवारी दौड़ाया और मियां को बहुत कोशिश के साथ गाड़ी पर सवार कराया। तालिब मौला से के बारे में जो हिजाबात है उसके बारे में जिक्र किया गया। तकरीबन यहाँ पर जो नज़रियात बयान की गई हैं उसमें ये बात हो रही है कि तालिब खुदाए तआला चार हिजाबत दो दरवसे इम्कानस यानी तरके दुनिया उज़्ज़त असफ़ल वो दो इम्कान यानी नफ्स व शैतान। तो यहाँ पर जो बात की गई है अल्लाह के रास्ते में गुजरने के लिए, अल्लाह के रास्ते से अल्लाह के ज़ात तक पहुँचने के लिए जो चीज़ हिजाबात बनते हैं वो क्या चीज़ें हैं। वो चार चीज़ों को यहाँ पर हज़रत मोहम्मद की नकल के ज़रिए से बयान की गई हैं। फरमाते हैं कि चार चीज़ें हैं जो इंसान को अल्लाह के रास्ते से रोकती हैं या उसके लिए मौला तक पहुँचने में उसका हिजाब बनती हैं। वो चार चीज़ें क्या हैं? तो आपने फरमाया यानी नफ्स और शैतान। नफ्स और शैतान ने दो चीज़ें अलग अलग बयान फरमाया कि ये दो चीज़ें हैं जो इम्कान में है, इंसान के इम्कान यानी अपने कब्ज़े कुदरत में हो सकता है। इंसान उसको चाहे तो क्या है नफ्स और शैतान को अपने क़ाबू में कर सकता है। इम्कान की माने ये ही इख्तियार में। तो फरमाया कि खलाइक से अलग इख्तियार करना दो, जिनमें से दो इंसान के इम्कान में है वो क्या है यानी दुनिया को छोड़ना और खलाइक से अलहदगी इख्तियार करना, करके दुनिया करना और मखलूक में उज़्लत असक़ल इख्तियार करना। और खलाइक से अलहदगी मतलब उज़्लत असक़ल यानी लोगों से तन्हाई इख्तियार करना, एक सुई में अल्लाह ताला की याद वगैरह के लिए अपने आप को महफूज कर लेना। इसको क्या है उज़्लत के नाम से भी कहा जाता है। और फिर कहा जाता है कि उज़्लत के माने हैं अल्लाह की याद और अल्लाह के ज़िक्र को कायम करने के लिए लोगों से अलग थलग हो जाना, ये उज़्लत है। तो ये दो चीज़ें इम्कान में हैं इंसान में इम्कान है उसके इख्तियार में है। तो हो सकता है कि इंसान दुनिया को छोड़ दे सकता है अगर चाहे। और दूसरा क्या है खलाइक से इख्तियार अलहदगी इख्तियार करना, ये जो उसके इख्तियार में है। तो ये दो चीज़ें छोड़ सकते हैं। और दो इम्कान में नहीं है, इम्कान है अपनी उसकी कुदरत में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं। वो क्या है नफ्स और शैतान। ये दो चीज़ें क्या है बाजार दिखाई भी नहीं देते, नफ्स नहीं दिखाई देता है और ना शैतान दिखाई देता है। हाँ जिसकी सकत और ताकत है उसको शायद कोई दिखाई दे। तो फरमाती कि दो चीज़ें क्या है इम्कान में नहीं है, दो चीज़ें इम्कान में है। वो चार चीज़ें हैं दुनिया और क्या है उज़्लत जो इम्कान में है और नफ्स और शैतान के लिए इम्कान में नहीं है। इन चार चीज़ों से अगर कोई बच गया, इसकी हिफाजत कर गया तो हो सकता है कि उसके लिए तमाम हिजाबात अल्लाह ताला दिखा दे और बग़ैर बेहिजाब अल्लाह ताला को देख सकता है, उस पर तक पहुँचा या रसाई हासिल कर सकता है। तो उसको नकल के वाज़ेह तरीके से और भी बयान करते हो हज़रत अल्लाह के पर बयान फरमाते हैं बाखल्क़ हर आँचे आशनाई अस फरमाते हैं खल्क़ के साथ जो कुछ आशनाई है, मखलूक के साथ जो मेल मिलाप ताल्लुक़ात दोस्ती वगैरह जो गुजरती है उसके मुताबिक कहते हैं खल्क़ के साथ जो आशनाई है चूँ आखिरकार माँ जुदाई अस। ये जो क्या है जब हमारा अंजाम सब कुछ छोड़ा है, ये अंजाम क्या है हमारा सब अंजाम क्या है सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना ही हमारा क्या अंजाम है। हमारी हकीकत क्या है हमारी असलियत क्या है वो तमाम चीज़ों को छोड़ना है। फिर चूँ दारी होने सी चूँ खुल हुवल्लाह, जब तू अल्लाह खुल हुवल्लाह के जैसा दोस्त रखता हो यानी खुल अल्लाह कह दो कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह एक है। अल्लाह को अगर दोस्त बना लेता है तो यहाँ पर तेरे लिए आसानी हो जाती है कि खते दरकश बगैर मासिवा तो खुदा के सिवा जितनी चीज़ें हैं उनके अतराफ लकीर खींच सकता है, लकीर खींचना है। तो अल्लाह के अलावा खुदा के अलावा जो भी मासिवा चीज़ें हैं तमाम चीज़ों से उस्रत इख्तियार करें, तन्हाई इख्तियार करें और अलहदगी इख्तियार करें। और इनके इन चार चीज़ों के ज़रिए से क्या इंसान अल्लाह ताला में पहुँच सकता है। तो इसकी वजाहत के लिए बहुत सारे वाक़यात भी यहाँ पर बयान किए गए। जैसा कि बंदगी में सलाम की रिवायत बयान की गई, ख्वाजा महफूज जो थे जालोर में बंदगी में जब दायरा पर कायम किए थे उन्होंने आकर अगर बंदगी में से ख्वाहिश की थी कि मुझे आपका जो जमात खाना है शौक में जाए। जमात खानों का तस्वुर होता था मजहबियों में और मस्जिद का तस्वुर नहीं होता था। मस्जिद बाद वो ज़माने बाद में के मसाजिद का तस्वुर शुरू हुआ और मसाजिद बनने लगी। जब तक क्या जमात खाने बना करते थे, जमात खाने जैसे कि उर्दू दायरा में आपने गुजार की अच्छी
वगैरह से पढ़ी है, सुनी है कि जमात खाना किसको कहते हैं और जमात खाने का हुक्म क्या होता है और मस्जिद का हुक्म क्या होता है। मस्जिद का हुक्म अलग है और जमात खाने का हुक्म अलग है। जमात खाना जो है इंसानों की नमाज रोज़े वगैरह की इबादत खुदा की इबादत के साथ साथ इंसानों की ज़रूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको जमात खाना कहते हैं। और मस्जिद जो होता है सिर्फ इबादत के लिए होती है, वहाँ पर किसी दुनियाई काम नहीं अंजाम दिया जा सकता। और उसकी निशानियाँ अलग अलग हैं, जैसा कि इंशाल्लाह कभी इस मौजूद पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मियाँ ख्वाजा महमूद आकर करते हैं कि आप बिरादरों के लिए मस्जिद जो है या जमात खाना है वहाँ की मैं मरम्मत करना चाहता हूँ, कुछ बना करके क्या उनकी सहूलत के लिए दिल रखना चाहता हूँ, इंतज़ाम करता हूँ लकड़ी वगैरह लाकर। तो रज़ीना ने फरमाया कि हमको ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बगैर इसके भी क्या है अल्लाह ताला की बात कर सकते हैं। और आप अपने क्या है अगर जमात खाने में नमाज़ पढ़ने की मोहब्बत ना आ सके या ये कैसी हालत है कि साहबा जमात खाने को नहीं आ सकते, जमात खाने की हालत बहुत ही खस्ता है, तो उनको चाहिए कि वो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ लें, हो जाए अपने घरों में नमाज़ पढ़ लेते। फिर दोबारा उन्होंने ख्वाहिश की कि बंदी में घर को वापस पहुँच गए। उस वक्त मियाँ वली जी जो इस किताब के मुसन्निफ है वो और एक सहाबी हैं, दोनों सहाबी क्या है मदीना के दोनों सहाबी ताबई हैं। इसलिए उन्होंने क्या है मदीना के पीछे पीछे के घर के बाद दरवाजे के पास मैंने घेरा और बढ़ कर जब दोनों आ रहे थे तो कहा कि क्या दुनियादारों से या अहले नफ्स से क्या ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो ये सोचे महमूद जो थे ख्वाजा महमूद वहाँ के नवाब से अमीर करते थे, उमरा में से थे। उस वक्त उन्होंने ख्वाहिश की थी कि बंदी में फरमाया कि क्या है उनसे कोई माजरत अपनी हुजूर उनके सामने पेश नहीं करना चाहिए कि क्या है अहले नफ्स हैं यानी दुनियादार हैं। तो इसलिए बंदी में फरमाया कि इनके जो कोई फरमाइश अहले नफ्स से नहीं की जानी चाहिए। फिर फ़ौरन मुनक़ता शिकस्ता और ये होता है कि इनसे अगर अपनी ख्वाहिशात को अपनी जो भी चीज़ें होती हैं जैसा कि हमारे अपने दोस्त की चीज़ों अगर उनके सामने पेश की जाती हैं तो हमारा इत्तेखाद में बिगाड़ पैदा हो सकता है। फरमाया कि शिकस्ता और के इत्तेखाद हो जा सकते हैं लोग उमरा के चौखटों पर अगर जाएंगे तो क्या होगा इत्तेखाद में भूल पैदा होगा। और तमाम भाइयों को मालूम है कि ख्वाजा पक्का मुसद्दिक़ था, हालांकि वो क्या थे पक्के मुसद्दिक़ थे, तस्दीक किए हुए थे, बावजूद इसके बंदगी में उनके पास उनकी पेश करने से मना फरमाया। कहते हैं कि उसके बाद में ये जो मियाँ महमूद हैं कहते हैं कि ख्वाजा महमूद पक्का जो मुसद्दिक़ थे वो उसके बाद में हिजरत करके बंदगी में अली की आदात अली से गौर के दायरे में आकर करके दुनिया वाला करके इसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरी क्या है मियाँ के दायरे में उन्होंने गुजारा था। तो ये इस तरह का किसी भी किस्म का मामला जो होता है अपना सब कुछ मामला ये आगे की नजर में आने वाला है। इससे पहले भी नकल की वर्दियाँ आपने पढ़ा, इसमें यही कहा गया कि कोई भी एहतियाज ज़रूरत मुहताजी जो है अपनी इंसान के सामने पेश ना की जाए, अल्लाह ताला से मांगे। और जैसे कि हदीस में भी बयान किया गया कि अल्लाह के शासन फरमाते हैं अस्तग़फिरुल्लाह मिन नासी वलो बशूर मिनल मिसवाक, यानी लोगों को चाहिए कि अगर मिसवाक के काढ़ी की ज़रूरत भी हो तो किसी इंसान के सामने उसकी एहतियाज को पेश न करें बल्कि अल्लाह ताला से उसको तलब करें। और फिर इंशाअल्लाह उधर में जो आप आगे आने वाली बयान बेनियाज हो जानी चाहिए, अगरचे के उसको मिसवाक की छोटे से टुकड़े का ज़रूरत भी महसूस हो जाए तो किसी इंसान के सामने उसके एहतियाज को बयान ना करे बल्कि अल्लाह ताला से मुस्तगनी रहे, अल्लाह ताला से लोग पूरा करेगा। फिर एक हदीस बयान की गई अल्लाह के शासन की इस्तग़नु बिलमिसवाकी मस्तताअतुम वक़ाल मा फतह रजुलन अला नफ्सी बाबा मसअलती इल्ला फतहल्लाहु अलैहि बाबुल फ़क़्र, यानी वहाँ उसके बाद फिर फरमाते हैं कि हिर्स एक खंजर की तरह होता है। हिर्स जो होता है वो एक खंजर मान लीजिए या खंजर की तरह होता है कि उसके दिल को हमेशा क्या है वो चाक करने लगता है। इसलिए कभी भी हिर्स वगैरह किसी से ना की जाए। और नीज़ फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेनियाज हो जाओ इस बात से भी जहाँ तक तुम हो सके। फरमाया जब आदमी मांगने लगता है तो खुदा ताला उसे मुहताज बना देता है। आदमी जब मांगने लगता है तो खुदा ताला उसको क्या कर देता है मुहताज बना देता है और हमेशा क्या मांगता ही रहता है। जब इस्तग़नाइयत की सिफत जो होती है उसके अंदर से खत्म हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है और गलत है। और कभी महिला की एक ज़माने तक ये पहचान और शनाख्त रही, कभी महिलावी हाथ फैलाया नहीं करते बल्कि हमेशा उनका ऊपर हाथ होता कभी, मगर बाद में चलते चलते हालात ऐसे पूरे बिगड़े हुए हैं कि हम क्या लोगों के सामने अपने इतिहास को पेश करने लगे। तो उसके तरफ से के मजीद फरमाते हैं इसका है खंजर की तरह है और फरमाते हैं कि दिल को ज़बाह करता है। ये खंजर क्या करता है हमारे दिलों को ज़बाह करता है। और नीज़ वाज़ेह हो कि बंदे में से उम्मीद करना जैसा कि ईद की नमाज को सलखनपुर जब आप अक्सर जाया करते थे पैदल तो जो राजा वहाँ के थे वहाँ के जो राजा थे वो क्या है जब उनको मालूम हुआ कि बंदे में ईदगाह को नमाज के लिए जा रहे हैं पैदल तो आपने क्या सवारी का इंतजाम करते हैं बंदे में उनकी सवारी
سواری کو استعمال نہیں کرتے بلکہ کیا ہے انکار کرتے ہیں اور پھر پیدل ہی چل لیتے ہیں. اسی طرح ہندوستان میں نشانے پر یہ صحابہ اکرام کا یہی عمل تھا کہ کوئی بھی ضرورت اپنی کسی کے دنیا دار کے سامنے پیش نہیں کرتے بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ اپنے توکل اور بھروسہ ہوتا اور اسی توکل اور بھروسے کی دنیا پر ہمیشہ اپنی زندگی اللہ واسطے گزارا کرتے تھے. تو یہ نقلیات کا یہی مفہوم ہے. اور پھر یہ نقل جیسے کہ معاملہ میں خدا تعالیٰ نے جو مانگا فرمایا تھا کہ نقلس کیا آپ نے سنا ہے نقل کیا نقلس کے حضرت بنا حکومت دس خدائے اس خدا مطلب و گرمی درد میں ہم از خدا مطلب اگر نمک خواہی ہم از خدا خواہ اگر آب خواہی ہم از خدا خواہ و اگر ہضم خواہی ہم از خدا خواہ رشیہ خواہی از خدا خواہ پیش مردم سوال مکن اگر سوال کنی پیش خدا تعالیٰ مکن بکن ہی رسد خداد و اما عظیمت آنس. اس کے بعد ایک نقل یہ بیت پڑھا. یہ نقل میں جو حضرت اکرم نے فرمایا کہ جو کچھ مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگے کوئی بھی چیز سوائے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کی کوئی چیز نہ مانگی جائے. اگر مانگنا بھی ہے کوئی چیز تو اللہ ہی سے مانگی. جیسا کہ اس میں تفصیل کی طریقے سے موسم فرمایا کہ نمک کا کنکر مانگنا ہے تو خدا سے مانگو, اگر پانی مانگنا ہو تو خدا سے مانگو, لکڑی کا ٹکڑا مانگنا ہو تو خدا سے مانگو, اور جو کچھ بھی چاہتے ہو تھوڑا سا حصہ بھی اگر کوئی چیز تمہارے احتیاج ہے ضرورت ہے کہ وہ بھی کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو. کوئی چیز کیا ہے غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو. مگر کیا ہے تمام چیزیں جو فرمایا آپ نے یہ رخصت ہے. اس کو مانگنا اللہ سے لوگوں سے مانگنا تو دور کی بات ہے, اللہ سے مانگنا خدا سے مانگنا یہ چیزوں کا یہ رخصت ہے. رخصتی عمل ہے. عالیت عمل اور یہ ہے اس کتابوں سے یہ بیت حضرت نے بیان فرمائی تھی. حشر جنت کا دہندت سربسر تو مشورازی اذاں درگزر. یہ آپ نے فرمایا اگر اس کو 8 جنتیں دے دی جائے تو اس کو تو راضی مت ہو جا بلکہ کہے تو اور آگے بڑھنے کی ہمت رکھ اور آگے بڑھ. اس کے بعد اور بھی اس کی تفصیل ہے جہاں پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ 8 جنتیں جیسا کہ ہم نے سنا ہے 7 جنتیں وغیرہ ہیں مگر یہاں پر کہتے ہیں 8 جنتیں ہیں. اگر 8 جنتیں بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو کیا اس پر خوش نہ ہو جائیں بلکہ اور آگے کی طلب رکھیں. ہمیشہ کیا آگے کی طلب رکھنا کی پہچانی چلاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ خدا کی ذات کے علاوہ خدا سے خوش نہ مانگنا یہ کیا عادیت ہے. اور کوئی چیز کا ضرورت کا انسان کی ضرورت کی چیز کا خدا سے مانگنا یہ رخصت ہے. انسان کی ضرورتوں کی چیزوں کا خدا سے مانگنا یہ رخصت ہے. خدا کی ذات سے خدا کی ذات کے علاوہ کچھ نہ مانگنا یہ عادیت لوگوں نے فرمایا. تو یہ عادیت یہ ہے. تو اس طرح کے ہمیں موسم کی نفسیات اور انشاءاللہ اس قسم کے ہیں کہ ہم موسم کی نفسیات پر عمل کرنے کے بعد توفیق عطا فرمائے. پولیس معلوم واضح ہو کہ ہر یہ باہر والے مشائخین کی روش ہے کہ دنیا داروں کے گھروں میں اور توانگروں کے پاس کچھ بھیجتے ہیں. یہ روش میں جو اسلام اور مدعی کی نہیں ہے. دنیا داروں کو ان کے گھروں سے بلائیں اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مدعیوں سے دنیا رضا ہوتا اور بعد 11 میں اسلام نے بلایا ہے تو جواب دیا جائے کہ یہ حضرات بینا تھے جو کام وہ کرتے تھے بینائی سے کرتے تھے اور ان کی نیت اور مقصود دین کے سوا کچھ نہ تھا. اس زمانے میں ہم جو کچھ کرتے ہیں خدا تعالیٰ کا روشن ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو تم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کی بات کو. اور اس کے بعد بھی یہ نقل ہے اور ایک نقل فرماتے ہیں مدینہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ اس کے لیے کثیر فتوح بہت پیسہ دے گا تو ہم ان لوگوں کو 2-3 مرتبہ کھانا تیار کر کے کھلاتے ہیں جو دائرۂ متوقع برخوردار رہتے ہیں. یہ یہاں پہ فصل پہلی فصل یہاں ختم ہوتی ہے تو یہی اس کا مطلب یہی تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے کسی غیر خدا سے کوئی چیز کی طلب نہ کیا جائے. اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ روش کیا ہے کی نہیں ہے. مہینے کی روش کیا ہے وہ صرف خدا سے اپنے ضرورتوں کی کیا پیش کرتے ہیں. جو غیر مہینے علماء مشائخین ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو یا اپنے چاہنے والوں کو کیا ہے غیروں کے پاس کرتے ہیں. امتیاز یہ ہے امتیاز دونوں کے درمیان میں ہے. اس کتاب سے کہا گیا کہ اس لیے کہ وہ جو لوگ تھے موسم کے زمانے کے اس کے بعد کتاب طبی اور اسلام
जो भी थे हमारे, वो क्या थे कि तमाम चीज़ों को देख कर क्या करते थे, बीना थे। अल्लाह ताला ने उनको बीना ही दी थी, हर चीज़ की सच्चाई हकीकत को जानते हुए अमल क्या करते। और जो नाबीना होते हैं वो इस किस्म का अमल नहीं होता था उनका। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज़ चाहे वो दुनिया की उसूल के लिए हो या आखिरत के उसूल के लिए हो या अल्लाह के लिए हो, इबादत हो, रियादत हो या दुनियाई मामलात हो, जो कुछ भी हो उसकी गरज जो गायब होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह के रज़ा को खुश देनी चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ होती है तो इस्लाम और मज़हब में ये ज़रूर है जायज़ और रवा नहीं है। अल्लाह से दुआ के अल्लाह तबारक व तआला उनको सही मामले पर उन फरामी पर पैगाम में